डॉक्टर प्रभजिंदर औलख बरियाना, डायरेक्टर कम चीफ आई सर्जन बरियाना आई हॉस्पिटल लेसिक लेजर सेंटर हुशियारपुर। आज मैं अपने व्यूअर्स नाल एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे गल करांगी जिन्हों कि असीं आई इंजरीज बोलते हैं। ਇਹ बड़े रूटीनली आई इंजरी के केसेस हर आई सर्जन की ओपीडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। राइट, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਕੂਲਰ ਟਰਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। राइट, देखो जी आई इंजरीज बहुत ही कॉमन ने और ये ਅਸੀਂ चार तरीके ਨਾਲ इसनूं कैटेगराइज करते हैं आई इंजरीज ਨੂੰ। नंबर 1, आई इंजरीज ड्यू टू ब्लंट ट्रामा। Second thing is eye injuries due to some chemical burns or chemical trauma, right? Chemical agents trauma ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Third thing is called heat injuries, right? And fourth thing is called penetrating ocular trauma। ठीक है, ये चार कैटेगरीज है जी ट्रामा दियाँ आई इंजरीज दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं one by one ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करांगी। So first of all, one of the most common trauma is blunt trauma। ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਯੂ ਨੋ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ, ਅਡਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੋਰਸਿਬਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ। ਜਾਂ ਵੁਡਨ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਬ੍ਰॉल ਸਮਵੇਅਰ ਔਰ ਫਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ one of the 3 most common causes ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਿਡ ਐਡੀਮਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਆਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕੀਮੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗਾ ਸਪੋਰਟ ਵੁਡਨ ਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਲਿਡ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਸਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟੀਅਰਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਟਿਵਾ ਸਕਲੀਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਟਿਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕੰਜੰਕਟਿਵਲ ਹੈਮਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਫੋਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ 2 ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਸਵੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਫੀਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਰਸੀਬਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਟਰਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਟਰਸ ਹੈਮਰੇਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਵਟ ਯੂ ਕਾਲ ਐਜ਼ ਲਿਡ ਟੂ ਦ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਰੈਟਿਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸਰ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਸਵੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਲਕਸੇਟਡ ਲੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬ ਲਕਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸੇਬਲ ਇੰਜਰੀ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੈਟਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਪੈਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੀਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੋਸ਼ੀਓ ਰੈਟਿਨਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਲਿਨ ਅਡੀਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਲੰਟ ਟਰਾਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਸੇ ਸੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जिन्होंने ਅਸੀਂ एंगल रिसेशन ग्लूकोमा कहने ब्लड ट्रॉमा के बड़ा इन्ना सीवियर होंदा है कि साडी एंगल जो अख का एंगल होंदा है और रिसीड कर जाता है, एंगल रिसेशन ग्लूकोमा खास तौर पर काला मोतिया बनना शुरू हो जाता है, पेशेंट की अख के अख का प्रेशर बहुत तेजी नाल बनना शुरू हो जाता है, राइट। सो इन्हों ਅਸੀਂ एंगल रिसेशन ग्लूकोमा ये भी बड़ा कॉमनली सानू ब्लड ट्रॉमा के देखने को मिलता है, राइट। सो स्टार्ट विद ट्रीटमेंट सब तो पहले जी असीं पेशेंट नूं एंटी इन्फ्लामेटरी देने हैं, पेशेंट नूं खाण नूं देने ताकि पेशेंट की पेन रिलीफ हो सके। सैकेंड थिंग इज एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स इंस्टिल करन नूं देने आ, स्टीरॉइड्स आई ड्रॉप देने आ, अगर प्रेशर वधिया होवे तां एंटी ग्लूकोमा मेडिसिन जिहड़े आ असीं वो भी पेशेंट नूं स्टार्ट कर देने। सो ये तो होगी मैडिकल ट्रीटमेंट, राइट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट जिन्हें मैं दसिया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जी पेशेंट का सपोज अगर 2-3 दिन पेशेंट का जो ट्रॉमा जो है ट्रॉमा के नाल जो साइंस एंड सिम्पटम्स है, इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, थोड़ी रिसीड होंगी है, थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी है, तो पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन वास्ते भी टेकअप किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन असी हाईफीमा बहुत सीवियर है, हाईफीमा अख के पानी अख के इंटीरियर चैम्बर अगर ब्लड बहुत ज़्यादा है नहीं रिजॉल्व हो रहा तो असी वो सर्जिकल इंटरवेंशन करके वो ड्रेनेज करते ब्लड में बाहर कढ़ देंगे, राइट। तो इनू असी लेट्स से ड्रेनेज ऑफ हाईफीमा बोलते हैं। और अगर पेशेंट का लेंस जो सबलक्सेट हो चुका है लेंस जो लेट्स से कि उतो डिसलोकेट हो गया इंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर च पिया है तो 2-3 दिन बाद सानू पेशेंट की सोजिश है थोड़ी ठीक करके वो एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह दे के मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन करके पेशेंट की अख के विचों वो लेंस जो कढ़िया जाता है। और स्क्लीरल फिक्सेटेड लेंस एक स्पेशल तरह के लेंसिस होंगे हैं। अगर लेंस बिल्कुल ही डिटैच हो करके लेट्स से कि डिसलोकेट होकर के इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर गिर गया है तो वो असी सर्जिकल रिमूव करके असी पेशेंट की अख के एक स्पेशल लेंसिस होंगे ने जो कि स्क्लीरल फिक्सेटेड लेंस ने मैं बड़े कॉमनली रूटीनली पानी अपने पेशेंट्स को, राइट। एंड आई एम फुली एफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट एट डूइंग द स्क्लीरल फिक्सेटेड लेंस सर्जरीज, राइट। इंट्राकुलर स्क्लीरल फिक्सेटेड इंट्राकुलर लेंस सर्जरीज और स्क्लीरल SF लेंस जो पेशेंट अख के पा के पेशेंट की अख की विजन जी है वो रिहेबिलिटेट कर देंगे, राइट। फिर अगर विट्रस हैमरेज है तो विट्रैक्टमी करके कढ़िया जाता है पेशेंट की। विट्रैक्टमी जी है अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा तो पेशेंट की विट्रैक्टमी की जाती है जिन्हें कि पेशेंट का विट्रस हैमरेज को ड्रेन किया। सो ये हो गया जी ब्लड ट्रॉमा, राइट। दैन कम्स द कैमिकल इंजरीज अख के पेशेंट बहुत कॉमनली आता जी डॉक्टर साहब मैं इन्वर्टर दी बैटरीज नूं कुछ एसिड वगैरह पा रहा सीगा तो वो फ्यूम्स जो एकदम मेरे अख के जोड़े पै गए, राइट। एसिड इंस्टॉलेशन होगी। या बच्चे कहते डॉक्टर साहब असी अपनी कैमिस्ट्री की लैब के गए सी वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन विद some chemicals so there is a accidental installation of these mild acids or alkalis in our eyes, ठीक है। वो असी पेशेंट को कोपियस पेशेंट को कहने कि तुम अपने अख में जो है चंगी तरह स्पलैश वाटर इन योर आईज और असी पेशेंट को ओटी के लैके प्रॉपरली थॉरो नॉर्मल सलाइन या रिंग इलेक्ट्रेट ना अख को प्रॉपर वॉश करते हैं सो दैट द पेशेंट शुड गेट रिड ऑफ ऑल दोज कैमिकल्स एंड टॉक्सिन्स इन हिज और आर आईज, राइट। फिर पेशेंट की अख के बर्नस होंगे ने फिर एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स पेशेंट दिए जाते हैं तो पेशेंट को सीरियल फॉलोअप्स वास्ते बुलाया जाता है, राइट। हीट वेव्स है पेशेंट के बहुत ज़्यादा हीट अख में लगे वो असी पेशेंट को कोपियस इरीगेशन जी पेशेंट की अख के लेट्स से कोल्ड सेलाइन वाटर के नाल पेशेंट की जी इरीगेशन करते हैं। फिर जी सब तो ग्रेव ट्रॉमा जो आइज का है दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, राइट। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कितना होंगे जी शार्प इंजरीज के नाल होंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जोड़े बच्चे होंगे ने लैड पेंसिल बड़ी शार्पस पेंसिल जी शार्पन की होंगी है एक्सीडेंटली वो अख के लग जाती है, राइट। या पेशेंट जोड़े एरो जो अजकल बड़े कोई शार्पस्ट ऑब्जेक्ट है एरो वो अख के लग जाता है पेशेंट चाइल्ड इज प्लेइंग विद दैट। और होर कई जड़ियाँ कोई नीडल है या कोई होर शार्पस्ट जो ऑब्जेक्ट्स है वो अख के ट्रॉमा करते हैं, राइट। सो एरिया इंजरीज जड़ियाँ मैं कैटेगराइज करेंगी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड की होंगे जी अगर बहुत थोड़ी जी लगी हो पेशेंट के अख के स्क्रैच लग जाता है, राइट। अगर कॉर्निया पोर्शन से लगे जिसमें कॉर्नियल अब्रेजन कहने हैं, अगर स्क्लीरा के उत्ते वाइट पोर्शन से लगे स्क्लीरल अब्रेजन कहने हैं। ये असी पेशेंट इज अनेबल टू ओपन हिज और आईज असी पेशेंट के अख के एंटीबायोटिक्स देने पेशेंट लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देने तो पेशेंट की पैड एंड बैंडेज कर देने 24 आवर 48 आवर्स पेशेंट जो है वो जी कॉर्नियल अब्रेजन है वो तकरीबन हील हो जाती है और पेशेंट जो है एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स नाल जो पेशेंट वो ठीक हो जाता है, राइट। एंड सीरियल फॉलोअप विजिट्स दे आर मस्ट, राइट। अगर होर फोर्सिबल ट्रॉमा होवे तो कॉर्निया जो कॉर्निया के लैसरेशन हो जाए या कॉर्निया टीयर हो जाता है, कॉर्निया जो रप्चर हो जाता है बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू इंजरी हो जाती है
ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ corneal tears और corneal lacerations along with iris prolapse। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। विदिन 24 आवर्स अगर आयरस प्रोलैप्स हो रहा है, विचला पर्दा कॉर्निया के वूंड तो बाहर आ रहा है, तब विदिन 24 आवर्स वी कैन रिपोजिट दैट आयरस। ठीक है जी, राइट। अगर उस तो बाद इंजरी पेशेंट रिपोर्ट्स लेटर ऑन तो सानू आयरस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਪਰਦਾ ਆਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਂਡੋਫਥਰਮਾਈਟਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर द होल ऑफ देयर लाइफ, राइट। सो ये होया जी। फिर अगर कॉर्नियल टीयर है तो सानू कॉर्नियल स्यूचरिंग करनी पैंदी है। ओटी जाके पेशेंट के अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और अगर बहुत छोटा बच्चा जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट की कॉर्नियल स्यूचरिंग करते हैं, राइट। और अगर पेशेंट की अख के नाल ब्लड आया हुआ है तो हाइफीमा जिन्होंने असीं कहने उन्होंने भी ड्रेन करते हैं, राइट। सो ये हो गया पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो गई। फिर वही अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा लेट्स से कि डीप हुई है तो पेशेंट के लेंस में भी पंक्चर कर सकती है, नैचुरल लेंस में। और पेशेंट को कैटरैक्ट बन जाता है जिहदे असीं पेशेंट का कैटरैक्ट फेकोएमल्सिफिकेशन करके नाल ही सेम सिटिंग के पेशेंट के कैटरैक्ट रिमूव कर देंगे तो नाल ही वो इंट्राओकुलर लेंस पा देंगे। और सपोज अगर कॉर्नियल स्यूचरिंग ज़्यादा है, कॉर्नियल टीयर ज़्यादा, तो वी कैन पोस्टपोन दीज कैटरैक्ट सर्जरी लेटर ऑन, राइट। सो लेट दीज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो थोड़ी इंजरी है तो वी कैन साइमल्टेनियसली टेक अप द सर्जरी, बहुत थोड़ी है। और अगर कॉर्नियल लैसरेशन कॉर्नियल टीयर ज़्यादा है, कॉर्नियल स्यूचरिंग ज़्यादा करनी पैंदी है, ना लेंस से भी इंजरी हुई है, तो असी पेशेंट की ਜਿਹੜੀਆਂ मल्टीपल सर्जरीज भी कर सकते हैं। पहला असी पेशेंट की कॉर्नियल स्यूचरिंग करके पेशेंट का चेंबर रिहेबिलिटेट करते हैं एंड जो 3 और 4 वीक्स बाद असी पेशेंट की लेट्स से कि कैटरैक्ट सर्जरी जी है लेंस ट्रॉमा करके जी लेंस से ट्रॉमा करके कैटरैक्ट बनया सी, कैटरैक्ट सर्जरी वी कैन टेक अप आफ्टर 2 और 3 और 4 वीक्स, राइट। और अगर सिमिलरली अगर बहुत फोर्सेबल है, पेशेंट विट्रस हेमरेज नहीं रिजॉल्व हो रही, तो विट्रेक्टमी सर्जरी भी वी कैन टेक अप लेटर ऑन, राइट। सो पेशेंट अगर वॉकुलर ट्रॉमा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा बहुत सीवियर है, वी कैन टेक अप 2 और 3 सर्जरीज एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। सेम साइमल्टेनियसली सारी सर्जरीज कर दी। समटाइम फर्स्ट ऑफ ऑल सानू ग्लोब रिपेयर जो है दैट इज आवर मेन कंसर्न, राइट, कि असी कॉर्नियल स्यूचर करिए, पेशेंट इन्फेक्शन तो बचाइए। सेकेंडली आफ्टर 1 मंथ और 3 वीक्स वी कैन टेक अप द कैटरैक्ट सर्जरी, राइट। एंड आफ्टर द कैटरैक्ट सर्जरी वी कैन टेक अप, ठीक है जी। एंड नाल कैटरैक्ट सर्जरी तो बाद ही अगर पेशेंट का विट्रस लेट्स से कि विट्रस हेमरेज बहुत ज़्यादा है, तब आफ्टर 1 वीक वी कैन टेक विट्रेक्टमी सर्जरी। और गॉड फॉरबिड अगर बहुत ही सीवियर इंजरी है, पेशेंट का रेटिना डिटैच हो गया है, तो आरडी सर्जरी वी कैन टेक अप लेटर ऑन। सो पेशेंट अगर ऑकुलर ट्रॉमा पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा बहुत सीवियर है तो पेशेंट को मल्टीपल सर्जरीज करानियां पै सकदियां हन एट सीरियस इंटरवल्स, right। So that is totally up to your surgeon to decide, ठीक है। So what has to be done first, what has to be done second, what has to be done third, or something, right। So the thing is the take home lesson is first of all precaution is always better than cure, right। So इन चीज़ों तो बचाव रखना चाहिए है अपना, जिन्ना तुसी इंजरीज तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट्स ऑलवेज बेटर। अदरवाइज ऑकुलर ट्रॉमा के पेशेंट का समटाइम जो सीवियर ट्रॉमा है तो पेशेंट का प्रोग्नोसिस काफ़ी गार्डेड होता है। एंड प्लीज वन take home lesson is once you have reposed full faith in one eye surgeon, do not keep on changing your eye surgeons, right। because जेडे eye surgeon थोड़ी पहला आँख जेडी चंगी तरह चेक की होंदी है, he or she will be able to tell you in a very nice manner that what right what is good for you, right। so always obey your surgeon and do come for follow up visits also। follow up visits are very important, यदि बड़े important है। sometimes ocular trauma patients we check them even after treatment, right। कोई delayed complications होती हैं, we keep on checking our patients, we keep on calling our patients for serial follow up visits, and follow up visits they are must, right। so सीगा जी why I want to enlighten my viewers regarding eye trauma। this was also my patients were demanding doctor तुसी eye trauma दे उत्ते भी कोई interviews दो, right। so I really request my viewers to please like, share and subscribe my channel, right। and we have got a page also on the name of on Facebook and Insta, do follow us। we have a page on the name of Brianna Eye Hospital and LASIK Center, do follow us on Facebook and
what do you call as Facebook and this Instagram, right? And thank you very much for watching this video. And next time I'll be back with other informative videos. Till then, bye bye. Take care.